Namaskar. Myself, Dr. Ismail Kumar Mishram, Department of Sociology and Social Work, Bharati Vishwavidyalaya, Durg, Chhattisgarh, welcomes you all in today's lecture of research methodology. Today we will discuss on this topic of types of social survey, part 3. This is the final part in which we have to discuss about few more important kind of social surveys which are happening in the social research field. Okay. In our previous two lectures, we have discussed about several types of social survey which are happening in many kinds of social researches and many other uses and utility of purpose of government policies, purpose of private sectors, companies, customer satisfaction purposes, marketing purposes, business purposes, and many other social relevant purposes. So, in today's lecture, we will discuss on these subtitles of public survey, secret survey, qualitative survey, quantitative survey, and in last we will discuss about repetitive survey. We will try to understand these subtopics and try to focus on its meaning and its procedure, how it works in the world of social survey in many kinds of social researches. So, first we will try to focus on public survey. Look, when we have to clarify and we have to analyze and we have to collect data about the common public sector areas, the interest topic of public areas such as census, statistical analysis and analysis of the public area which is related to their fundamental needs and their basic problems which they are facing in their social life and political areas. So in these kinds of researches, when there is a need to interpret and to collect and to analyze the data of public sector, then we will use the public survey. In this survey, we can use census data and its analysis, and we can use political data and the basic need area of the public sectors, basic needs such as road, such as houses, such as a problem of food, problem of employment, problem of the basic needs which one has to live a social life, basic needs to have social activities which one requires in the manner to live their normal life. So, with the help of public surveys, we collect those data which is required to be publicly released and let the people know how their census data and their political need structure and their basic needs are changing time by time. So we analyze it through many kinds of public surveys in the manner the public interest, these fields which are related to
direct public interest and their welfare. So people want to know these kinds of information, these kinds of data and these kinds of surveys and their implementation of government level and public level also. So the data and these kinds of surveys have collect the data, have collect the analysis of public interest. People know them, people analyze them, the experts know them, experts analyze them with the help of public surveys. ओके, हिंदी में यदि समझने का प्रयास करें तो जो पब्लिक सर्वे है, जो आम सर्वेक्षण है, जनता से संबंधित सर्वेक्षण है, जनता से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को, जैसे कि जनसंख्यात्मक आंकड़े हैं, जो राजनीतिक रूप से संबंधित सामाजिक क्षेत्र हैं उनसे संबंधित आंकड़े हैं, इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे संबंधित आंकड़े हैं, किस प्रकार से सरकार उनका जो है इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, उनका प्रयोजन कर रही है और उस प्रकार की गतिविधियां कैसे लागू हो रही हैं समाज में, उससे क्या परिवर्तन आए हैं, आज से 10 साल पहले की स्थिति कैसी थी, आज की स्थिति कैसी है, भविष्य की स्थिति कैसी होने वाली है, इससे संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करना और आंकड़ों को जानना ये जनता के लिए आवश्यक होता है। बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं जो इस पर कार्य कर रहे हैं उनके लिए आवश्यक होता है। इसके आधार पर किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं, किसी योजना का निर्माण करने में सहायता मिल सकती है। तो इस प्रकार का विश्लेषण जो है जनता से संबंधित सर्वेक्षणों में होता है और जनता के हित से संबंधित आंकड़े उनको प्रदान किए जाते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है और ये सार्वजनिक रूप से होता है। सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं पब्लिक सर्वे या जनता से संबंधित सर्वेक्षण उनके हित के लिए और उनको उन बातों और उन क्षेत्रों की जानकारी देने के लिए जिससे उन्हें लाभ होता है या जो जानकारी उनके लिए आवश्यक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित हो, जनसंख्यात्मक आंकड़ों से संबंधित हो, राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित हो या जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो किस प्रकार से जनता की पूरी हो रही है, नहीं हो रही है और क्या कमी है। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 80% से भी अधिक आबादी जो है वो गरीब है और गरीबी रेखा के आंकड़ों के ऊपर पर्याप्त रूप से बहस होती आई है कि ये आंकड़े जो हैं सर्वमान्य नहीं हो सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर खड़े नहीं उतर सकते हैं। ये आंकड़े जो हैं सरकार जो है किसी दबाव में या किसी अलग तरह की मानसिकता में निर्मित कर रही है जिससे सरकार की आलोचना ना हो। इस प्रकार की कई सारे विवादास्पद स्थितियां निर्मित होती रही हैं और बहस चलती आई है, परंतु कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जिन्हें जनता को प्रदर्शित करना आवश्यक होता है। जनता और जो बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं जो अध्ययन में लगे होते हैं उनके लिए ये आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार के सर्वेक्षणों से उनमें मदद मिलती है जिसे हम जनता से संबंधित सर्वेक्षण पब्लिक सर्वेस कहते हैं, जिनके आंकड़े सार्वजनिक होते हैं, जिनकी डिमांड होती है, जिन्हें सार्वजनिक किया जाता है और इसके द्वारा विभिन्न अध्ययन और विश्लेषण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सीक्रेट सर्वे। सीक्रेट सर्वे आर आल्सो रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट, but the government or the authority will not reveal its analysis to public. It is not publicly available. It will not reveal to the public for the sake of their good and their welfare. These secret surveys perform secretly and it is related for public interest and their welfare. Public interest and welfare is the motive behind the secret surveys, but we cannot release their analysis and their data publicly.
Okay, government and authorities will use this kinds of analysis and data for making a better policy and making better policies for the purpose of security and the purpose of internal and external affairs of the nation and the states of nation, so that data will not be publicly for the sake of the secret policies of government agencies and for the sake of the constitutional provisions which are for the public welfare and the security purposes of the nation and its various kinds of respective agencies such as RAW or CBI or any other agency which is related to government and the various kinds of crimes and criminal affairs are described and analyzed by them. So, when there is the need to be secret the data and the analysis of the social survey, we can use the secret survey for the authority and for the government purposes. In constitutional, so it is oriented with public interest and welfare, but it is secret. ये गुप्त प्रकार के सर्वेक्षण हिंदी में यदि समझने का हम प्रयास करें तो ये गुप्त सर्वेक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? गुप्त सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सरकार जिन सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं कर सकती है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है, इस प्रकार के सर्वेक्षण करना आवश्यक होता है। ये जनता के लाभ के लिए और जनता के कल्याण के लिए ही होते हैं, परंतु इन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है ताकि जनता को किसी प्रकार की या राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। तब इस स्थिति में गुप्त सर्वेक्षण का सीक्रेट सर्वे का इस्तेमाल यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं क्वालिटेटिव सर्वे। ये जो गुणात्मक सर्वेक्षण है ये गुण पर आधारित होता है, ये क्वालिटी पर बेस्ड होता है। जब सर्वेक्षण का उद्देश्य जो है किसी सामाजिक घटना का या किसी सामाजिक भाग का अध्ययन करना हो और सर्वेक्षण के द्वारा हम उनके गुणों को उजागर करना चाहते हैं तो उस स्थिति में गुणात्मक सर्वेक्षण का सहारा लिया जाता है। और गुणात्मक सर्वेक्षण हमेशा गुणात्मक अनुसंधान पद्धति से जुड़े हुए होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च, सोशल रिसर्च मेथड से जुड़े हुए होते हैं। So we can say that qualitative survey are the part of qualitative research methods, and qualitative surveys are for the sake of seeking the quality behind the social activities and social incidents and the parts of societies. So when we analyzing and when we evaluating the quality of the social scenario, then we use qualitative surveys. गुणात्मक सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग सामाजिक प्रक्रिया या समाज के किसी भाग या समाज की किसी घटना के गुणात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है। हम वहां गुणात्मक पहलुओं पर ध्यान देने का प्रयास करते हैं और उनका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। तो जब इस प्रकार के सर्वेक्षण की आवश्यकता हो कि हमें किसी सामाजिक परिस्थिति का या सामाजिक घटना का या सामाजिक संबंधों का या समाज के किसी भाग का गुणात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है, गुणों के आधार पर विश्लेषण करने की आवश्यकता है, तब हम एक बहुत बड़ी मात्रा के लोगों पर गुणात्मक सर्वेक्षण पद्धति का इस्तेमाल करके आंकड़ों को संग्रहित और विश्लेषित करने की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ते हैं।
तो ये है क्वालिटेटिव सर्वे का व्याख्यात्मक पहलू। आगे हम देख रहे हैं क्वांटिटेटिव सर्वे। So the quantitative survey are used for a large scale of people when we have to focus on the quantitative data of the society for many kinds of social issues and many kinds of social incidents. We are focusing on the quantitative data. So with the help of the quantitative analysis we can resolve social incident and many kinds of social problems. Then we have to use this survey, quantitative survey. हिंदी में यदि समझें तो जो संख्यात्मक, जब हमें आंकड़ों की आवश्यकता होती है और संख्यात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती है, तो संख्यात्मक रूप से बहुत बड़ी आबादी का जब हमें अध्ययन करना होता है, तब हम जो है ये क्वांटिटेटिव सर्वेक्षण का, संख्यात्मक सर्वेक्षण का उपयोग करते हैं। और संख्यात्मक सर्वेक्षण के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं को समझने का और उनका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, और विभिन्न प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां या समाज के किसी भाग का जब संख्यात्मक रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता हो कि किस मात्रा में कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, या कितने लोगों तक ये चीजें फैली हुई हैं, या कितने लोग किसी विशेष चीज से जुड़े हुए हैं, किसी विशेष शैली से जुड़े हुए हैं, किसी विशेष विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है जनता के ऊपर में या उन समूहों के ऊपर में, बड़ी मात्रा में या बड़े क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के मध्य, तब हम इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटेटिव सर्वे का, संख्यात्मक सर्वेक्षण का। चलिए, नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट रिपीटेटिव सर्वे। मैनी काइंड्स ऑफ सोशल सर्वे हैव टू बी रिपीट इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, maybe after 1 year, maybe after 2 years, or maybe after every month. So the nature of, according to the nature of the social problem or social incident, we have to repeat this social surveys several times. And which type of survey we have to repeat for the social incidents, for the social problems in several times with a gap of certain time period. This kind of survey we call the repetitive survey. Okay, we have to repeat it. Repeat it with the gap of certain time period. हिंदी में यदि समझें तो ये पुनः होने वाला सर्वेक्षण है, इसमें पुनरुक्ति होती है। तो पुनरुक्ति सर्वेक्षण में हम किसी सामाजिक घटना या सामाजिक परिस्थिति का या समस्या का पुनः पुनः अध्ययन करने की जब आवश्यकता होती है, तब इस प्रकार के पुनरुक्ति सर्वेक्षणों का इस्तेमाल किया जाता है। और पुनरुक्ति सर्वेक्षण के इस्तेमाल के लिए एक निश्चित समयावधि के अंतराल की आवश्यकता होती है, और ये अंतराल निर्भर करता है उस सामाजिक घटना की प्रकृति पर या उस सामाजिक समस्या की प्रकृति पर कि कितने समय के अंतराल के पश्चात उसके पुनः अध्ययन की आवश्यकता है। तो उस गैप को मेंटेन करते हुए, उस अंतराल को व्यवस्थित करते हुए, चाहे वो अंतराल 1 महीने का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, पुनः पुनः ये पुनरुक्ति सर्वेक्षण का इस्तेमाल किया जाता है, सहारा लिया जाता है किसी सामाजिक घटना या सामाजिक समस्या के विश्लेषण के लिए, अध्ययन के लिए, शोध के लिए। तो इस प्रकार से आज हमने इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा की, जो कि पार्ट है सोशल सर्वेस का, सामाजिक सर्वेक्षण का, और अंतिम बचे हुए मुख्य बिंदुओं पर आज हमने चर्चा कर ली है। और ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है कि कितने महत्वपूर्ण प्रकार हैं सामाजिक सर्वेक्षण के, कितने मुख्यतः सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार होते हैं, which are the important kinds and types of social surveys. We have discussed it
and finalize it today in this lecture. I hope you have understood it, which we have discussed today. Okay, today I have discussed on this third part, and in next class we will meet with a new fresh topic to discuss and to understand. Thank you so much.